Welcome back to the Tantra physics classes. Here I have a problem for you. It's a problem from Arrow, and this problem has been solved by many leading professionals of India. And this is a problem from Arrow from waves and oscillations section. I don't remember the number of the problem, लेकिन यही कि waves and oscillations का problem है. प्रॉब्लम ये है कि एक स्ट्रिंग है, इट इज रैप्ड ओवर द डिस्क, पुली समझो या डिस्क समझो, and there's a mass hanging, and there's one more mass which is attached to the rim, the circumference of this disk, and the system is balanced. The system is balanced means the disk does not rotate or this body does not go down. तो हमें ये साबित करना है कि अगर मैं इसको डिस्टर्ब करूं, अगर इस मास को थोड़ा सा मैं नीचे लाऊं तो डिस्टर्ब हो गया ये. दिस इज द स्ट्रिंग व्हिच इज रैप्ड ओवर दिस डिस्क. इसको नीचे लाने से थोड़ा सा डिस्क रोटेट होगा, स्लिप नहीं कर रहा है. ये जो स्ट्रिंग है, इट विल नॉट स्लिप, इट विल रोटेट द डिस्क. व्हेन इट गोज डाउन एंड आई विल रिलीज इट अगेन. हमें साबित करना है कि इट विल हैव टॉर्शनल ऑसिलेशंस. इट विल रोटेट लाइक दिस, इट विल कम बैक एंड गो लाइक दिस, इट विल गो लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस. सो इट विल रोटेट अबाउट दिस सेंटर C, and it will have rotational torsilations. हमें वही साबित करना है कि will it have rotational torsion, simple harmonic torsional oscillations? Will it rotate simple harmonically? और फिर हमें इसका ओमेगा भी निकालना है. What is the angular velocity of this? What is the angular frequency of these torsional oscillations? अगर ओमेगा हमें मिला तो टाइम पीरियड भी मिलेगा और f भी मिलेगा, number of oscillations per second. This problem has been solved by many leading professionals very nicely, but they have used force and force equations. They have put tension here and tension here. So many things they were involved in, and it became, I should not say, and they are good in their own right. लेकिन मैंने सोचा कि can it be done other way around in a simple way, by using scalar functions like energy. And I used energy function and I solved this problem in a few steps. First of all, what is the given condition is they are balanced, and in the final answer this m0 is missing. M0 is not there. Therefore we must have an equation between m0 and m. So this m0, it will, there's a force m0g downwards, and this also has force mg downwards. The torque produced by this should be equal to torque produced by this about center C, so that this is in equilibrium. So what is the torque produced by this? अगर मैं ऐसे करूँ, ये तो force line है और perpendicular डाल दीजिए. This is r, this is r, this is r cos, this is r sin. So mg r sin alpha is equal to m0g into this r. mg r sin alpha is equal to m0g and this r. Torque by this about this C, torque of mg about this C is this. So gr and gr finishes. It is m sin alpha is equal to m0. This is given. ये समझो ये given है. अब मैं क्या करूंगा? Let me disturb a little bit downwards. जब मैं इसको downwards पुल करूंगा नीचे थोड़ा सा, तो ये मास ऊपर जाएगा यूं, और ये नया पोजीशन है मास का. सपोज आई डिस्टर्ब इट बाय थीटा, और ये जो पॉइंट यहां पर है इधर, ये भी नीचे आएगा बाय द सेम एंगल, और ये पॉइंट नीचे आएगा बाय दिस एंगल थीटा, और ये डिस्टेंस के हिसाब से आर थीटा होगा, बिकॉज दिस इज आर, दिस इज थीटा एंड दिस इज आर थीटा. नीचे आएगा आर थीटा, ये पॉइंट. तो अब जाकर इस इंस्टेंटेनियस पोजीशन पर मुझे इसका टोटल एनर्जी चाहिए. तो आई विल राइट एनर्जी E इक्वल टू, यस, I will write potential energy of this mass point here
potential energy of this, and kinetic energy of the disk and this mass and this mass. But here is a simplifying factor. Here is a simplifying factor. Simplifying factor is this mass and the disk and this mass, they rotate with the same angular velocity about this point C. Because the string is not slipping, it is rotating. It is rotating. This means this m0 and this m and the disk, they all have the same omega about this C. So that means it has a pure rotation about C. Therefore, we need only to write rotational energy of all the parts of the system about C. That's it. You don't need to go for 1 by 2 mv square, 1 by 2 m0 v square, and 1 by 2 I omega square. No, you don't need to do that. अगर आप करोगे तो हो जाए, उसे हो जाएगा. लेकिन लास्ट में आपको v को सबस्टिट्यूट करना पड़ेगा r omega. If you do that, you get the same. Again, you are back to the same equation. But I will do one thing here to simplify the situation. What I will do, I will write simply the total energy of the system is only rotational energy about C, because all the parts of the system move with the same omega. So I will write 1 by 2 single I omega square. But this single I is not this moment of inertia of the disk alone. No. This is of the moment of inertia of the disk and this mass about C. Okay. Suppose this line is zero potential energy line. So what's the potential energy of this mass here? How much down it is? It is mg. How much down it is? It is r cos component here. It is cos component down. That is minus mg r cos of alpha plus theta. That is the potential energy of this mass point. What's the potential energy of this mass? तो कितना नीचे आया r थीटा. तो अगर आप इस h को ऐड भी करोगे तो वो कोई बात नहीं है, आखिर में वो डिफरेंशिएशन में जीरो होगा. लेकिन अगर आप इमेजिन करोगे ये m यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो वो भी चलेगा, यहाँ है वो भी चलेगा, अगर यहाँ है तो वो भी चलेगा. दैट मींस इट हैज गॉन, द मास हैज गॉन डाउन सिर्फ ओनली r थीटा. तो आई विल राइट माइनस mg r थीटा, mg, एंड हाउ मच डाउन इट इज फ्रॉम दिस रेफरेंस लेवल. तो ये है पोटेंशियल एनर्जी. दैट्स इट, टोटल एनर्जी. बस ये एक इक्वेशन है, इसी इक्वेशन से हो जाएगा क्वेश्चन. अब मैं क्या करूं? अब मैं इसका डिफरेंशिएट करूं डी बाई डी टी. वो जीरो होना चाहिए, बिकॉज टोटल एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, बिकॉज द ओनली एक्सटर्नल फोर्स इज ग्रेविटेशन एंड दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स. बाकी जो भी सारे इंटरनल फोर्सेज है, व्हाटएवर, and I have not mentioned any of those forces. Those forces have to be mentioned if you use force equation or if you use torque equations. तो वो तो लाना ही पड़ेगा फिर, and that complicates the things, or that उसमें मैथ का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है. तो इट इज डिफरेंशिएशन करो, इट्स 1 by 2 I कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 2 ओमेगा, ओमेगा का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम आगे लिखना पड़ेगा. दैट इज अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन. अब यहाँ अल्फा ऑलरेडी आया हुआ है, तो इसलिए मैं अल्फा प्राइम लिखूंगा. बट दिस अल्फा प्राइम इज एंगुलर एक्सेलरेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा. आप ये भी लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी टी, लेकिन दूसरे स्टेप में आपको चेंज करना पड़ेगा. इट इज माइनस एम जी आर साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा, मगर माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इनटू आगे जाकर थीटा का डिफरेंशिएशन, दैट इज ओमेगा डी थीटा बाई डी टी, माइनस एम जी आर थीटा का डिफरेंशिएशन, दैट इज ओमेगा. तो डी ई बाई डी टी को जीरो रख दो, जीरो कर दो, बिकॉज टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एंड इज डिफरेंशिएशन इज जीरो. तो ओमेगा शुड कैंसल थ्रू आउट विद जीरो एंड 2 गेट्स कैंसल. तो मैं लिखूंगा आई अल्फा प्राइम प्लस एम जी आर, इसको एक्सपेंड करो, साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा माइनस एम जी आर इज इक्वल टू जीरो. मैंने इसको इस साइन अल्फा प्लस थीटा को एक्सपेंड किया. एवरीबॉडी नोस, मैं इंजीनियर्स तो ज्यादा ही इसको अच्छी तरह से करते रहते हैं. मेडिकल वालों के मेडिकल वाले भी इसको को पता होना चाहिए. इज आई अल्फा प्राइम प्लस
एम जी आर, थीटा को टेंड्स टू 0 स्मॉल है तो cos 0 इज 1, तो साइन अल्फा ही लिखो, तो प्लस cos अल्फा कांस्टेंट है, साइन थीटा, थीटा इज स्मॉल तो साइन थीटा को थीटा ही लिखो, व्हेन थीटा इज स्मॉल साइन थीटा एंड tan थीटा आर रिप्लेस्ड बाय थीटा देमसेल्व्स, दैट इज व्हाट यू ऑलरेडी नो, माइनस ये m0 है, ये m0 है, ये m0, ये इसका है डार्क, ये इसका है पोटेंशियल एनर्जी इसका, तो इट इज m0 gr इज इक्वल टू 0, तो इट इज I अल्फा प्राइम mgr साइन अल्फा, ये वाला मैंने लिखा, प्लस mgr cos अल्फा थीटा माइनस mgr इज इक्वल टू 0। अब ये जो m0 है इसको अगर आप m साइन अल्फा लिखोगे इस चीज को, तो ये हो जाएगा m साइन अल्फा gr, तो वो यहां खड़ा हुआ है, यहां पर खड़ा है, इसका मतलब अगर मैं इस m0 को सबस्टिट्यूट करूं इधर या इस m साइन अल्फा को m0 ही लिखूं तो ये खत्म हो जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन आया I अल्फा प्राइम इज इक्वल टू, ये उस साइड ले लो, माइनस mgr cos अल्फा थीटा, ऐसे थीटा को मैंने ब्रैकेट में रखा ताकि आपको पता चले हम क्या कर रहे हैं, तो अल्फा प्राइम इज इक्वल टू माइनस mgr cos अल्फा थीटा बाय I, ऐसे रिकॉग्नाइज द इक्वेशन, रिकॉग्नाइज द इक्वेशन। अच्छा, मैं आपको इक्वेशन रिकॉग्नाइज करने में थोड़ा सा मदद करता हूं, वो ऐसे कि जो टॉर्शनल ऑसिलेशंस का इक्वेशन है दैट इज अल्फा, फिलहाल अल्फा प्राइम इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, जहां कहीं भी ऐसा इक्वेशन आपको मिलेगा तो समझो समथिंग इज ऑसिलेटिंग बैक एंड फोर्थ, समथिंग इज मेकिंग टॉर्शनल ऑसिलेशंस, तो दिस इक्वेशन रिजेंबल्स दिस इक्वेशन, को दैट मीन्स अगर आप मैंने डिस्क्राइब किया तो इट मस्ट हैव टॉर्शनल ऑसिलेशंस लाइक दिस, यूं ऐसे करके ये ऐसे होगा, इट इज द, हाउ डू आई नो, हाउ डू यू नो, इट इज द इक्वेशन व्हिच टेल्स यू दैट, क्या ऐसा इक्वेशन तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में ही होता है, तो व्हाट इज ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज गिवन बाय, तो पहला हमने साबित किया कि इट विल हैव टॉर्शनल ऑसिलेशंस, वो साबित हमने कैसे किया, हमने इक्वेशन को डिराइव करके देख लिया, तो ओमेगा स्क्वायर जो है दैट इज mgr cos अल्फा बाय I, मगर व्हाट इज I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल सिस्टम, दैट इज 1/2 mr स्क्वायर प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तो डिस्क का है, दैट इज mr स्क्वायर प्लस इसका क्या है m0, कितना दूर है सेंटर ऑफ मास है इसका m0, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज m0 r स्क्वायर, एक r खत्म होकर के इस r के साथ होगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ व्हाट, यस, रूट ऑफ व्हाट, दैट इज mg cos अल्फा डिवाइड बाय 1/2 mr प्लस m0 का सबस्टिट्यूट करो, बिकॉज m0 इज नॉट गिवन इन द फाइनल आंसर, दैट्स व्हाई वी हैव टू डिलीट दिस m0 समहाउ, तो अगर m0 नहीं दिया है तो उसका मतलब यह हुआ कि आपको m0 यहां सबस्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो mr इसके बाद 1 प्लस ये m0 को जब मैं m साइन अल्फा लिखूंगा तो वहां साइन अल्फा रहेगा, तो पहले सबस्टिट्यूट करो फिर mr कॉमन निकालो, दैट्स इट आंसर। तो अगर आपको ओमेगा मिला समझो f भी मिलेगा, बिकॉज f इज व्हाट, दैट्स ओमेगा बाय 2 पाई, तो टाइम पीरियड भी मिलेगा, दैट्स ओमेगा बाय 2 पाई, सॉरी 2 पाई बाय ओमेगा। So this is how the question is done by using energy considerations. Why I prefer energy considerations? Because energy is scalar and you can deal with scalars easier than you deal with vectors like force and torque, because the mathematics gets quite involved. अब देखो जो एरोडॉफ के क्वेश्चन जो आपको शायद मुश्किल लगते हों, उसमें हर एक क्वेश्चन में, जो भी एरोडॉफ का क्वेश्चन है उसमें हर एक क्वेश्चन में कोई सिंपलीफाइंग फैक्टर होता है,
You have to pick up that simplifying factor, and question is done within no time. या कोई भी आईआईटी लेवल पर जो क्वेश्चन आते हैं मैं देखता रहता हूं, उसमें कोई ना कोई बीच में कोई ऐसा सिंपलीफाइंग फैक्टर होता है, कोई सिंपलीफाइंग एजम्पशन होता है जिसको आप पिकअप करके आप उस क्वेश्चन को कम से कम टाइम में कर सकते हैं. लेकिन आपको देखना होगा, यू हैव टू अटैक दैट सिंपलीफाइंग फैक्टर, यू हैव टू अटैक दैट थिंग दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. बाकी उसका रूट फिर शॉर्ट हो जाता है. So I thank you for watching these lectures and encouraging me. Within few days of time, what we are going to do, we will be giving live lectures to the students all over India, and you can ask questions directly to me, so that students get benefited, and students should get benefited. And I will be continuously uploading these lectures on YouTube, and then you can watch them, and maybe you will get benefited by watching these lectures. Thank you.